सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास पढ़ रहे थे हाउ टू चेक ए फंक्शन वेदर इट इज वन वन और ऑन टू। ये वन वन है, ऑन टू है, दैट मीन्स वन वन मीन्स इंजेक्टिव एंड ऑन टू इज द सब्जेक्टिव। तो क्या होगा, वन वन ऑन टू है या नहीं, तो वो कौन से केस में वन वन होगा, कौन से केस में ऑन टू होगा, वो चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज भी क्या करेंगे हम लोग, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, तो दो तीन एग्जाम्पल करेंगे। देखो, क्योंकि तुम्हारा कंपोजिशन और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम योर 2021 एग्जाम, okay, 2021 examination, CBSE board examination 12, because of COVID-19 30% syllabus is reduced ना। तो उसमें से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो composition of a function and inverse of a function, both the topics or concepts are removed. Okay, so the maximum number of questions of relation and function will come from this portion. Okay, the 1 1 on 2 portion, and in relation part to check whether the function is reflexive, symmetric or transitive. Okay, so we are more focused, so we have to give more focus to 1 1 and on 2 function. Okay, so today we are going to solve some of the examples related to the bijective function, na, that is 1 1 function and on 2 function. So the first example, today's first example is, write down the question. If f such that r to r, okay, means f is a function on r. R means set of real numbers. Okay, and fx equal to x square, fx equal to x square, then prove that f is neither 1 1 nor on 2. F is neither 1 1 nor on 2. F is neither 1 1 nor on 2. 1 1 भी नहीं होगा और on 2 भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि कोई भी चीज नहीं है बोल के अगर प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें से कोई एक स्पेशल केस लेंगे, और अगर हम लोग प्रूव कर लेंगे कि वो एक ही स्पेशल केस में अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो टोटल केस में भी नहीं होगा, उसको ऐसा कंसिडर करेंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है बोल के अगर प्रूव करना है, तो इसमें प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, या फिर कोई भी एक चीज़ प्रूव करना होता है। सपोज प्रूव दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, तो उसमें क्या करेंगे, अगर 1 1 प्रूव करना है तो हम लोग को उसको जनरल केस के लिए प्रूव करना पड़ेगा। ऑन 2 प्रूव नहीं करना है तो कोई भी एक केस के लिए अगर हम लोग दिखा दें कि वो ऑन 2 नहीं है, तो वो टोटल केस में भी क्या होगा, वो ऑन 2 नहीं होगा। इसमें हम लोग को दोनों केस में नहीं है बोल के दिखाना है, तो कोई भी एक जनरल केस ले लेंगे और उसमें अगर देख लेंगे कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, तो क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि दिस इज neither 1 1 nor on 2. Okay, so for 1 1 we have to check whether it is 1 1 or not. So the function is fx equal to x square, whether
both the domain and codomain are both real number set. Okay, so suppose this is the domain, this is the codomain. Okay, fx equal to x square is there. Suppose for the point 1, okay, for the point 1 we have the square of 1 is 1 and also the square of minus 1 is 1. Now the square of 1 is 1 and the square of minus 1 is also 1. Yes ना? 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 है. तो लेफ्ट साइड में ये जो 1 का जो इमेज के लिए we got two pre-images, that is minus 1 and plus 1. Okay, we got minus 1 and plus 1. Okay. So f is not 1 1 because for the point 1 the image is 1 because 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, and for the point minus 1 the image is also 1. So f is not 1 1 because to be a 1 1 function every image should have a different pre-image na, but here the point 1 1 have two images. Okay, so if f such that R to R and fx equal to x square, so fx is your x square, fx is x square. So if we are going to find out the value of f of 1, that is 1 square equal to 1, and the value of f of minus 1, the value of f of minus 1, that is minus 1 square, is also equal to 1. Okay, so h f of minus 1 equal to f of plus 1 equal to 1. दो ही प्री इमेज का एक ही खाली इमेज निकल रहा है, that means the function is not 1 1. So the function is not 1 1. So the function is not 1 1. Okay. The function is not 1 1. Okay. Now you have to check whether the function is onto or not. Okay. So to check whether the function is onto or not, for onto, to check whether the function is onto or not. Okay. So for onto, what is the condition of onto? Every elements of the codomain have a pre-image. Every elements of its codomain. तो राइट साइड के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज होना जरूरी है. So this is your real number set. This is the real number set. So every images, okay, every elements of the codomain has a pre-image. Okay, that means राइट साइड के तुम्हारे सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक ना एक एलिमेंट्स के साथ वो क्या होना चाहिए, लिंक होना जरूरी है. ओके, सो फॉर द पॉइंट, सपोज इसमें क्या होगा, रियल नंबर सेट है,
तो दुनिया के सारे नंबर इसमें आते हैं एक्सेप्ट व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसमें क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज देयर ना। तो क्या होगा, कोई भी नंबर का, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। उसका स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो अगर उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा, दैट मींस राइट हैंड साइड में कोई भी अगर सपोज नेगेटिव नंबर ले लें, दैट इज -1, सपोज -1, तो क्या होगा, इफ x square equal to -1, if x square equal to fx equal to suppose -1, that is x square equal to -1, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ -1, x का वैल्यू जो होगा वो रूट ओवर ऑफ -1, जो कि क्या है, तुम्हारे रियल नंबर सेट में नहीं है, which is does not belongs to R और its डोमेन। तो हम लोग क्या किए हैं, कोडोमेन का कोई भी एक पॉइंट लिए हैं। हम लोग को पता है कि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसी भी इसलिए कोई भी नेगेटिव नंबर हम लोग चूज किए हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू सपोज -1 होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, रूट ओवर -1, जो कि डोमेन में नहीं है कि नहीं, विच इज नॉट इन द डोमेन। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो -1 जो है वो क्या निकला, खाली निकला, वो किसी के साथ भी लिंक नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, तो वो फंक्शन जो क्या होगा वो ऑन टू नहीं होगा। सो f इज नॉट ऑन टू। इसमें ऊपर का तुम लोग लिख लेना, लेट -1 इज ए पॉइंट फॉर -1 इज ए पॉइंट फॉर, लिखो फॉर -1 इज ए पॉइंट in its codomain, or -1 is a point in its codomain. For -1 is a point in its codomain, we got x square equal to -1. So x equal to root over -1, which is not in the domain. Okay, so f is not on 2. So f is not on 2. So now we are moving towards another example. Okay, another example. So suppose the question is, if f shows that n to n, if f shows that n to n and fx equal to x plus 1 and x minus 1, if x is even and x minus 1 if x is odd. This is the question, I think. Oh, full time. This is x is odd and x minus 1 if x is even, then prove that x is 1 1 and on 2. X is 1 1 and on 2. फंक्शन को देखो, उसमें से हम लोग को प्रूव करना है कि x इज f इज x इज लिख दिया हूं इसमें, ये f इज होगा, f इज 1 1 एंड ऑन 2, f इज 1 1 एंड ऑन 2। ओके,
तो इसमें हम लोग को है बोल के प्रूव करना है ना। तो कोई भी एक कंडीशन के लिए अगर हम लोग दिखा देंगे कि ये है बोल के, तो वो ट्रू नहीं हो जाएगा हर एक कंडीशन के लिए। तो कोई भी कंडीशन अगर प्रूव दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें दिखाना पड़ेगा जनरल केस के लिए दैट द फंक्शन एफ इज बोथ satisfies the condition of 1 1 and condition of the onto function. Okay, so to prove that this is 1 1 and onto, so for prove that this is 1 1 function, so I am writing the function fx equal to x plus 1 if x is even and x minus 1 if x is odd, if x minus 1 if x is odd. ओके, f जो है वो क्या है, डोमेन जो और जो कौन डोमेन जो है वो क्या है, तुम्हारे नेचुरल नंबर सेट ही है ना। तो क्या होगा इसमें देखो, फॉर 1 1 टू चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। ओके, इसमें 1 1 है बोल के प्रूव करना है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, f of x1 equal to f of x2 then x1 must be equal to x2. Let fx1 equal to fx2, इसमें 4 चीज पॉसिबल हो सकते हैं। 4 चीज क्या, कि x1 इवन हो के x2 ऑड हो सकता है कि नहीं, x1 ऑड हो के x2 इवन हो सकता है, x1 और x2 दोनों इवन हो सकते हैं, या फिर x1 और x2 दोनों ऑड हो सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि x1 और x2, सपोज x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। ओके, 4 केस के लिए हम लोग चेक करेंगे। लेट पहला कंडीशन x1 is even and x2 is odd. x1 is even and x2 is odd. If x1 is even, then fx1 equal to fx2. So what will be the value of x1? If x1 is even, then the fx1 equal to x1 plus 1 होगा। इवन के लिए +1 है और ऑड के लिए क्या है, -1 है। एंड एच x2 इज ऑड, सो दिस इज x2 -1, सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको साइड लेते हैं तो क्या होगा, x2 minus x1 will be 1 plus 1 is 2। तो इसमें देखो क्या है, x1 इवन है और x2 जो है वो ऑड है। कोई भी इवन नंबर से कोई भी एक ऑड नंबर को तुम लोग माइनस करके देखो तो डिफरेंस जो क्या होगा वो 2 नहीं होगा, एक इवन इंटीजर कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो डिफरेंस ऑफ एन ऑड नंबर टू एन इवन नंबर इज नाइदर इवन नंबर, नेवर, वो कभी क्या होगा, इवन नंबर वो नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x2 जो है वो ऑड है और x1 जो है वो इवन नंबर है, तो उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 कभी नहीं होगा। तो ये तो केस गया, पहला केस जो है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट x1 इज ऑड and x2 is even,
x1 is odd and x2 is even. Suppose fx1 equal to fx2. If x1 is odd, then fx equal to x1 minus 1. This is your x1 minus 1, and fx2 is x2 is even, so fx2 is x2 plus 1. So x2 minus x1 is equal to what? minus 2 ना, minus 2 होगा इसमें. x2 minus x1 equal to minus 2, which is not possible. ठीक है, तो किसी भी दो, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, या फिर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कभी भी क्या होगा, +2 या फिर -2 नहीं होगा. तो ये दोनों कंडीशन में तो वो क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है. तो अभी क्या करेंगे, दोनों को इवन लेंगे और फोर्थ केस में क्या करेंगे, दोनों को ऑड लेंगे. ओके, थर्ड कंडीशन, x1 is even and x2 is even. Then fx1 equal to fx2. So as x1 is even, we got x1 plus 1 and this is x2 plus 1. दोनों इवन है ना, तो क्या होगा, x1 के लिए भी x1 plus 1 होगा और x2 पॉइंट के लिए x2 plus 1 होगा. Then दोनों साइड से क्या हो रहा है, तुम्हारा 1 1 जो है वो रिमूव हो जा रहा है, and we got x1 equal to x2, x1 equal to x2. तो क्या हो रहा है, fx1 equal to fx2 हो रहा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, x1 equal to x2. So for x1 x2 even, f is 1 1. हो गया. x1 x2 even के लिए x1 x2 क्या f क्या होगा, जो तुम्हारा वो क्या होगा, 1 1 होगा. x1 x2 अगर इवन अगर हो रहा है. ओके, थर्ड कंडीशन के लिए ट्रू हो रहा है. अभी क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे फॉर x1 इज ऑड एंड x2 इज ऑड. ठीक है, तो चेक करेंगे फॉर x1 इज ऑड एंड x2 इज ऑड. x1 is odd and x2 is odd. Let fx1 equal to fx2. So for x is odd, the value of fx is x minus 1. So we can put x1 minus 1 and x2 minus 1. Then x1 will be equal to x2 by cancelling -1 from both the sides. Now for x1 is odd, x2 is even, and x1 is even and x2 is odd, the condition is not possible, na? But for both the numbers are even and both the numbers are odd, in both these condition the function f is 1 1. Okay, so the function f is, now we can write, so the function f is 1 1. So the function f is 1 1. Okay. Now we have to check for the function is onto or not. Okay, or onto. For onto. Okay. तो इसमें देखो, हम लोग को ऑनटू प्रूव करना है. इसका मतलब राइट साइड के कोई भी एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट साइड का क्या होगा, उसका एक प्री इमेज होगा ही होगा. वो चीज़ है बोल के हम लोग को प्रूव करना है ना. तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दिखा दें कि तुम्हारे x के मतलब इवन नंबर्स के लिए उसमें कुछ नंबर्स आ रहा है और ऑड नंबर्स के लिए उसमें जो भी नंबर्स आ रहा है, तो वो दोनों को अगर हम लोग क्या कर लें, मिला लें, तो क्या होगा,
वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर सेट होना चाहिए। ठीक है, उसको करके देखते हैं। जैसे कि फॉर 2 द फर्स्ट कंडीशन, लेट x इज इवन, लेट x इज इवन। सपोज x जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, इवन होगा। दैट इज लेट x इक्वल टू 2n, 2 into n नंबर n। ओके, तो वो क्या होगा, इवन होगा। where n belongs to n, तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। 2 into any number, any natural number is an even number ना। so let x equal to 2n, then f of x equal to f of 2n equal to, when x is even, then fx equal to 2x plus 1, then this will be, fx will be each x plus 1. So in place of x we can put 2n, so this is 2n plus 1. Okay. जब x जब even था, means when the pre-image is an even number, then we got the images h all odd numbers। ये सब odd numbers हैं कि नहीं, odd number का फॉर्म देखो। 2n अगर इवन है तो उसमें सपोज एक हम लोग ऐड कर रहे हैं, कोई भी इवन नंबर में एक अगर हम लोग ऐड कर लें, दैट मीन्स वो नंबर क्या हो जाता है, एक और नंबर हो जाता है। सो फॉर द प्री इमेजेस h इवन वी गॉट द इमेजेस h ऑड। ओके, तो अगर हम लोग प्रूव कर लें कि जो ऑड के लिए इवन अगर इमेजेस आता है, तो क्या होगा, तुम्हारे राइट साइड के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लिंक हो जाएंगे तुम्हारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स के साथ। तो क्या होगा, देखो इसमें सेकंड प्रिंसिपल लेते हैं, इफ x इज ऑड, सपोज x इज ऑड, लेट x इक्वल टू 2n plus 1, सपोज x इक्वल टू 2n plus 1 हम लोग ले रहे हैं, where n belongs to n, x इक्वल टू 2n plus 1 ले रहे हैं हम लोग, है ना, एक और नंबर का फॉर्म। तो f of x इक्वल टू f of 2n plus 1 इक्वल टू, तो क्या होगा, देखो इसमें x जब ऑड होगा तो क्या हो रहा है, x minus 1 हो रहा है, तो x की जगह पे कितना है, 2n plus 1, then we got 2n plus 1 minus 1 is equal to 2n। ओके, तो तुम्हारे कोड डोमेन में क्या क्या हो रहा है, फॉर इवन these are all odd numbers and for odd these are all even numbers। तो राइट साइड के तुम्हारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आइदर इवन नेचुरल नंबर्स है या फिर ऑड नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो इसमें लास्ट में लिख लो, सो h all the even natural numbers and the all natural numbers that is even natural number और and odd natural number। उसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर साइड है, दैट इज नेचुरल नंबर सेट, दैट मीन्स इट्स कोडोमेन हैज pre-images, so average on 2।
तो इसमें हम लोग प्रूव किए थे पहले कि जो f जो है वो क्या है, तुम्हारे 1 1 है, और अभी हम लोग प्रूव किए हैं जो f जो है वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया ये वाला जो क्वेश्चन। तो इस टाइप के एग्जाम्पल से तुम लोगों को आज तुम लोगों का होमवर्क है, इसका जो एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 1.2। ठीक है, तो फिर ऐसे बुक का तुम्हारा जो एग्जाम्पल्स जो है उसको देखना और एक्सरसाइज 1.2 करने की कोशिश करना। जो भी डाउट है उसको पूछना। आज का क्लास इतने में ही रहने देते हैं। ओके।